ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ گزشتہ سال ختم کی جانے والی وزارت سیفران شہریار آفریدی کو دے دی گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے نیائی صاحب کی طرف جائیں گے۔ نیائی صاحب، جس وزارت کو ختم کر دیا گیا تھا وہ شہریار آفریدی صاحب کو دے دی گئی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا خیال ہے اتنی کافی ہے کہ جو وزارت نہیں ہے اس کا وزیر بنا دیا گیا ہے، تو اس سے زیادہ کیا برا فیصلہ ہوگا؟ وزارت ہی نہیں ہے اور وہ وزیر ہیں۔ صافی صاحب؟ جی میرے خیال میں یہ انتہائی مناسب فیصلہ ہے، کیونکہ جو پچھلے 7-8 مہینے سے ان کی جو پرفارمنس رہی ہے تو وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ قطعاً وزارت چلانے کے اہل نہیں ہیں، اور وہ سارا زور انہوں نے خطابت اور جھوٹے وعدوں اور ان چیزوں میں لگا رکھا تھا۔ ابھی اس روز بھی پروگرام میں نے سید عالم محسود کے اس کی بات کی تھی۔ آپ لوگ اگر پشتو سمجھ آتی اور ڈاکٹر سید عالم محسود کی ویڈیو سنیں کہ ہائی کورٹ سے ہو چکا ہے باقی، اور صرف ان کی، اور وہ بھی یہ کسی اور کے خوف سے نہیں کر رہے تھے، تو وہ تو ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ فیصلہ بڑا آئیڈیل فیصلہ ہے کہ ان کو ایسی وزارت کا انچارج بنا دیا کہ وہ وزارت خود اس حکومت نے 2018 کے اینڈ میں ختم کی ہے، تو بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ ویسے اچھا فیصلہ ہے اس حساب سے۔ ماہر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریار آفریدی صاحب متاثر کن کارکردگی نہیں دکھا سکے، کہاں کمی رہ گئی ان سے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ بس شہریار آفریدی جو ہے وہ عمر اکمل ثابت ہوئے اس ٹیم میں، اور ان سے توقعات بہت تھی عمران خان صاحب کو، لیکن جس طرح عمر اکمل سے ہمیں توقعات بہت تھیں لیکن مایوس کیا، تو مجھے تو وہ افتخار عارف کی 12ویں کھلاڑی والی نظم کی طرح ہو گیا ان کے ساتھ، اور جو وزارت ہی نہیں ہے اس کے وزیر بنا دیے گئے۔ کہنا ان کو صرف یہ چاہ رہے ہیں عمران خان کہ بہتر ہے کہ آپ یہ وزارت بھی قبول نہ کریں اور چلے جائیں، حالانکہ عمران خان صاحب کو توقعات بہت تھی ان سے۔ صحیح۔ ارشاد بٹی صاحب، شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے کہ ایسی وزارت ان کو دے دی گئی جس کو دسمبر میں ختم کر دیا گیا تھا؟ نہیں دیکھیے، سب سے بڑا مذاق ہے یہ کہ شہریار آفریدی کو بھی چھوڑیں، اس وزارت کو بھی چھوڑیں۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد 24 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے، آپ نے پہلے ہی 40-45 وزارتیں رکھی ہوئی ہیں، اوپر سے آپ نے ختم کی وزارت کو لا کے کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب خود سادگی مہم پر نکلے ہوئے ہیں خرچے بچانے کے چکر میں، اور حالانکہ ہم نے چند دن پہلے بھی تنقید کی تھی کہ یہ غربت مٹاؤ جو مہم ہے وزارت ہے، یہ کیوں نئی لانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ میرے خیال سے فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کم وزارتیں ہونی چاہیے ان کے اختیار، 4-5 ٹوٹل وزارتیں ہیں، تو یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے۔ ایک میں آپ شاید تھوڑا سا میں معلومات میں اگر اضافہ کر سکوں یہ اس حوالے سے کہ دیکھیں، وہ خان صاحب کے کچھ سالوں سے اتنے فیورٹ نہیں ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ کہ پورے دھرنا کے دوران آپ لوگوں نے ان کو کنٹینر پہ خان صاحب کے دائیں بائیں نہیں دیکھا ہوگا۔ ان دنوں میں ان کو خان صاحب نے بنیگالہ سے نکالا تھا اور کافی عرصے تک ان سے باتیں بھی نہیں کر رہے تھے۔ ابھی بھی وہ کابینہ میں کسی اور رستے سے آئے تھے، اور میرے خیال میں وہ اور رستے والوں کو مطمئن رکھنے کے لیے اب خان صاحب نے ان کو یہ وزارت بھی تما دی، اور اس لیے ایسی وزارت دے دی کہ جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ رابعہ، جس طرح نیائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ افراد کو، جس کے اوپر صافی صاحب نے بھی بات کی، تو کیا یہ وہی آپ کے خیال میں اسی کی زد میں آئے ہیں شہریار آفریدی صاحب بھی ٹیشو پیپر موومنٹ کے؟ سب افراد کو، سب ساتھیوں کو اور سب دوستوں کو، باقیوں کا تو دیکھنا ہوگا بھی جتنوں کے نام سامنے آئے۔ کیسا مجھے یہ کیسا بتائیے افسا کومل کو یہ ٹیشو یاد رہ گیا؟ رابعہ، افسا مجھے یہ بتائیے کہ اگر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے عمران خان صاحب چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو، تو اتنے انکمپٹنٹ انسان کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت انکمپٹنٹ رہے ہیں، یہ اپنی جو لاسٹ کچھ ٹریجڈیز ہوئی ہیں پاکستان میں، اس میں بھی جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے، I think this is the biggest joke۔ ان کو آپ نے کوئی منسٹری دینی ہی کیوں ہے؟ کیا آپ اب بھی انہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں ناراض نہ ہو جائیں؟ یہ کوئی گھر میں بچے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹوائے لے لیا اسے تو دوسرا کھلونا ہاتھ میں پکڑا دیا کہ بچہ جو ہے وہ ایموشنل نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے؟ آپ نے یہ جو فاٹا کا خیبر پختونخوا میں مرجر ہے، اس کے بعد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے یہ سیفران کی منسٹری، اس کے باوجود آپ نے ایک شخص کو، ایسے شخص کو جس پر قوم کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکمپٹنٹ رہے ہیں اپنی پہلی کی اتنی امپورٹنٹ منسٹری میں، ان کو آپ نے یہ منسٹری دے دیا۔ آئی تھنک اس پوری ایپیسوڈ میں اگر ہم کہیں کہ کوئی سب سے بڑا جوک کیا ہے، یہ آئی تھنک دس از دا بگیسٹ جوک۔
जो काम नहीं कर सका अपनी वजारत में उसको दूसरी मिनिस्ट्री दी ही क्यों गई है? राबिया, बिल्कुल ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। वजारत दाखिला का कलमदान जो खान साहब के पास था, अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या वो खुद उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, जो भी उनका फैसला यही है कि वो एजाज शाह साहब को सौंप दिया गया है। ये कैसा फैसला है सलीम साफ़ी साहब? एजाज शाह साहब का फैसला देखिए वो वही मामला है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला है और इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा फ़ैसला है। और अभी तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं ये एक ऊपर बंदे का तकल्लुफ़ क्यों इन्होंने वो रख दिया है। वो भी उनमें से या मुशर्रफ साहब को ला के ऊपर बिठा दे या जरदारी साहब को, क्योंकि टीम तो सारी उनकी हो गई और पॉलिसियाँ भी मैक्सिमम तो उनकी चल रही थी, लेकिन सिर्फ ये कि उनके मुखालफत के नाम पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो आज मुशर्रफ साहब भी बड़े खुश होंगे जिस तरह जरदारी साहब खुश हैं, और इमरान खान साहब के लिए ये अच्छा फ़ैसला नहीं है क्योंकि वो शहरयार अफरीदी नहीं होंगे। वो असल में जिसके दोस्त हैं तो वो मुशर्रफ साहब के दोस्त थे, मुशर्रफ साहब के आदमी थे, या फिर अगर अब होंगे तो उनके जानशीनों के होंगे। और एक तवील एक्सपीरियंस भी वो रखते हैं। इमरान खान साहब का बोझ कम कर दिया जाए। वो जो पहले आपने मुझे बात करने नहीं दी कि जो राबिया कह रही थी कि ये कोई बच्चे हैं कि जिनको खिलौना दिया जाए। देखिए नए पाकिस्तान का अभी लड़कपन है, तो जिसका खुद वो नए पाकिस्तान का लड़कपन है तो वो ज़रा तो बच्चों जैसा बिहेव करेंगे ना, तो ठीक है, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक। इरशाद भट्टी साहब, ऐसी क्या खूबी है एजाज शाह साहब में जहां सबसे वजारतें ली जा रही थी उनको वजारत से नवाज दिया गया? देखिए एजाज शाह साहब का प्लस माइनस पॉइंट ये है कि वो मुशर्रफ साहब के साथी थे और बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी की उन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो जब सूरत हाल ये हो कि जो नामज़द मुल्ज़म है वो जरदारी साहब उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लें परवेज़ इलाही साहब को, जब सूरत हाल ये हो कि चेयरमैन सेनेट पर PTI और पीपल्स पार्टी मिल चुकी हों, जब सूरत हाल ये हो कि कैबिनेट में मुशर्रफ, नवाज़ और PP के लोग बैठे हों, तो फिर ये एतराज़ कोई मानी नहीं रखता। इनका एक वसी बैकग्राउंड है इंटेलिजेंस का, तजर्बाकार आदमी हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, मजहबी तंजीमों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो मुल्की सूरत हाल है उसमें ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। शहरियार अफरीदी से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ैसला है और ये आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। शहरियार अफरीदी नहीं, उनको इमरान खान साहब ने अपनी जगह मुकर्रर किया है। नहीं ये तो वो मुकाबला कर रहे हैं वैसे नहीं यार, वो कल तक वजीर दाखिला कौन थे? नहीं वजीर दाखिला उनको दिए हुई थी, तो कोई बात नहीं। आप 16 वजारतें भी यहाँ लोगों ने रखी हुई हैं, तो एक आध उसने भी रख ली तो क्या हो। नहीं तो मुआवजा उनका करे इमरान खान साहब। तो ये बहुत अच्छा, कहने का मकसद है कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। और इमरान खान साहब से अच्छे वजीर दाखिला साबित होंगे भट्टी साहब? ठीक है। क्या कह रहे हैं जी आप? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इमरान खान साहब से अच्छे वजीर दाखिला साबित होंगे ये ब्रिगेडियर साहब। इमरान खान साहब कायदे इनकलाब हैं, कायदे इनकलाब है, वो वजीर आजम है। न्याई साहब ठीक है, पेपर से ऊपर आ जाए। न्याई साहब जब हुकूमत आने के हुकूमत पे आने से पहले जब वजारतें दी जा रही थी न्याई साहब, तो वजारत दाखिला जो है वो परवेज खटक साहब को देने की बात भरे हुए हो। और देखो इस मुल्क में का क्राइसिस देखो कि उसने टीम बदली है तो तरह तरह की बातें। भाई क्रेडिट उसका है, डिसक्रेडिट उसका है, फायदा भट्टी साहब क्रिकेट मैच नहीं हो रहा, क्रिकेट की टीम नहीं है, मुल्क चलाने की बात है। मैं जाती तौर पर मुल्क चलाने की, और अगले दिन उसको कहा इससे साबित हुआ है कि वो कितने सीरियस हैं आपके बारे में, यानी मुल्क चलाने के बारे में। वो टीमें बदल रही है और आप ऊपर से सारों का न्यायी साहब समेत मजाक उड़ा रहे हैं। ये जाती तौर पे जब आप लोग सब ये बात करते हैं कि टीम इमरान खान साहब ने चेंज कर ली है, न्यूज़ पे लाया था कि मैं नहीं हटा रहा, तो ये मुझे साफी साहब और भट्टी साहब ये जाती तौर पे बात समझ नहीं आती जब आप लोग कहते हैं कि टीम चेंज कर ली है। क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, क्रिकेट की टीम नहीं है, मुल्क चलाने की बात है, वजारतें हैं, ये बहुत अहम। न्याई साहब, जब वजारत दाखिला जब आगाज में PTI की हुकूमत आई थी तो उस वक्त कहा जा रहा था कि परवेज खटक साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको मिले, तो इमरान खान साहब ने अपने पास रख ली। अब एजाज शाह साहब को ये सौंप देना, ये कैसे देख रहे हैं इसको आप? पहले तो फिक्रा सुन लें, मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा इश्क बोलता, तो इसको ऊपर नहीं दे। फिक्रा तो सही बोल दो, मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलता है। तो मैं आपको दुरुस्त कर चुके हैं। मैं जरा इश्क के मैंने जान के
फिक्र ना करो, पिछले ये नहीं है 15 कि साल में पहला शेर अब सुनाया, देख ले उसका भी तोड़ के सुना देख दिया। ले शुक्र क्रैक है किसने इलामा की है, इकबाल दौर में बात आपने करने साहब, देख ले न्याजी तस्हीर साहब, आप किसने जवाब की है। दें कि अगर न्याजी हुकूमत कर सकता है तो शायरी भी कर सकता है। इलामा इकबाल दौर में ये होते नहीं- इकबाल साहब खुद अपने ये ना हाथों से देखिए, मारते आप। देखिए ये न्याजी देखिए साहब बोला जवाब कौन दें है, कि अगर न्याजी ओहो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बकौल इनके तो शायर नहीं मुझे बन पता सकता। था, मैंने यार को मैंने यार को नहीं, मैंने देखा बोला कौन है, मैं नहीं बोल दी, मेरे पीछे मेरा मैं इश्क नहीं बोलदा। बोलती, मेरे विच मेरा इश्क बोलदा। यानी आप आलम लोहार का थिएटर लगा दिया शेर का, कोई खुदा का तो खौफ दूसरा करे। बात ना बोले ये तो करो, ये नहीं साहब। अभी आपने यही भाषण सुना है। देखिए जी बात ये है कि एजाज जो एजाज शाह साहब हैं, जो कि बड़ा इनके बारे जोखिम का में बनता है। इनके बारे में आप ये क्यों नहीं जानते कि ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने मैं नहीं जनरल बोलती, मेहदी मेरे साहब के विच बस साथ करें में यार, उनको बात बड़ी करने साहब दो। अब आराम करने न्याय दें, साहब, बात करने न्याय दें, साहब को बोले दें, शाह बड़ी साहब साहब प्लीज। बात करने देना कोई आप हो क्या- गया, आप- हो गया, आप- ठीक है, आप- न्याय साहब मेरी जी। आवाज बंद कर दें, आप मेरी आवाज बंद आपकी कर दें। आवाज ना, बंद करने नहीं के बंद करते हमको ये। मैं नहीं बोलती, मेरे विच न्याय मेरा साहब, इश्क बोलदा। मुकम्मल अच्छा करें न्याय साहब। मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलदा, ये वो यार बोल रहे सी, आप ठीक है, आप ठीक वो है। यार बोल रहे सी, ठीक है अब यही से शुरू करें। मैं नहीं बोलती, मेरे विच यार बोलदा, और वो यार बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा देखिए जी अच्छा, बात बात यह है ठीक है, अब ठीक कि एजाज शाह साहब के बारे में आप ये क्यों नहीं जानते कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने काफ लीग बनाने में बड़ा मौसर किरदार अदा किया। भट्टी साहब ने सही इशारा किया कि उनका इंटेलिजेंस का बड़ा वसी तजर्बा है। वो इन सियासतदानों के साथ बाकायदा जो है फाइलें दिखा के इंटरव्यू करके ये और जनरल मेहदी साहब बड़ा मौसर किरदार अदा किया था 2002 में और 2001 में काफ लीग बनाने में। दूसरी बात यह है कि 2014 में जब धांधली इलेक्शन धांधली के ऊपर मुहिम चली तो एजाज शाह साहब जो हैं 10 अगस्त या 11 अगस्त 2014 को इमरान साहब के पास एक ट्रंक में उनके घर पे लेके आए थे 10,000 सफ़ात पे धांधली के सबूत, और वही सबूत कमीशन के सामने रखे गए थे जिन्होंने उठा के उसको रद्दी के टोकरे फेंक दिया। लेकिन एजाज शाह साहब की जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, उसको तो नहीं झुठलाया जा सकता, उसको तो अप्रिशिएट करना था। और तीसरी बात यह है अच्छा। कि एक बंदा उस जो है हवाले से वो दी गई है इतने बड़े वजारत, बड़े ठीक। चीज़ों में नॉमिनेटेड है और पीपल्स पार्टी के यही जिसको सवाल कहना लेके चाहिए न्याय कि साहब, पूरा नॉमिनेटेड है। मदद तो साहब उसके के पास बाद जाएंगे हम उनको एक ब्रेक के बाद, जो आप बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल है कि ठीक है। ये वाहिद चॉइस है। चौथा चीज़ है कि जो पिछले दिनों उन्होंने फिक्रा कहा था, तो मैंने आप ही को प्रोग्राम में कहा था कि ये फिक्रा काफ़ी है। उन्होंने कहा था मैं जो लोगों को इन्होंने थ्रेट किया था, मैंने कहा इंशाअल्लाह ये जी। फिक्रा इनको वजीर दाखिला बना देगा। तो आप मेरे मुंह में घी शक्कर सही। डालें कि आज वो वजीर दाखिला बन गया, बड़ा अच्छा फैसला है चलें जी। इमरान साहब ठीक का। है जी। मज़हर अब्बास साहब, जो इनके जो जिन कंट्रोवर्सीज का ये शिकार रहे हैं, ये बहुत अहम कलमदान है, इस वक्त में इस चीज़ के मुतामिल हो सकते हैं कि इनके ऊपर भी सवालात उठें उसके बाद, ये वजारत मिलने के बाद? ये जब इंटेलिजेंस में थे उस वक्त की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, ये जब होम सेक्रेटरी थे उस वक्त की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, कितना मुल्क में अमन व अमान कायम किया इन्होंने, कितना पंजाब में सूरत हाल बड़ी काबू में लाए, ये वो सारी चीज़ें उठा के देख लें। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत बेहतर वो हैं तो वो आप बना दें। लेकिन मेरे लिहाज से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फ़ैसला है, एक बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। और इससे अगेन इससे बेहतर था कि किसी और को दी जाती ये वजारत। मेरे ख़्याल में इस फैसले से जो गालिबन अगर इमरान खान अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त ख़ास तौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़ में, और जिस चीज़ों को लुक आफ्टर करना है, अगर आपने आर्म्स ट्विस्टिंग करनी है, छितरौल लगाने हैं, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। और इवन अदरवाइज अगर आपने मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो जो पास्ट है उनका, वो पास्ट रिकॉर्ड जो है वो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो डैनियल पर्ल का केस हो या फिर आप उठा लें बेनज़ीर भुट्टो के केस में जिस उसमें। जी बिल्कुल सही। राबिया, आपके ख्याल में ये रिस्क लिया है एजाज शाह साहब को ये वजारत देके? आई थिंक अब सा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई ऑप्शन होता तो इमरान खान साहब के अपना जो कलमदार उनके पास था वो इनको ना देते। मेरे ख्याल में इसको बड़ा क्लियर कर लेंगे जो सब कुछ हुआ है, फवाद चौधरी साहब और शहरियार आफरीदी और अभी एजाज शाह साहब। इमरान खान ने एक पेपर लिया और उसके ऊपर कुछ नाम लिखे और सामने कुछ बॉक्सेस बनाए जो कि मिनिस्ट्री के बॉक्सेस थे। अब मसला ये आ गया
کہ نام بہت زیادہ تھے اور منسٹری کے باکسز کم تھے. عمران خان صاحب نے اپنے پاس جو قلمدان تھے اس کو بھی نکال کر 1-2 باکس بنائے اور جو لوگ تھے انہیں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں اسی پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ عمران خان نے فی الحال اس پیپر کو اور اس ایگزام کو اچھے سے کلیئر کر لیا ہے. اب آگے رزلٹ آئے گا اور اب تک تو یہی لگ رہا ہے کہ اس رزلٹ میں جو پہلے کے نتائج تھے اس سے زیادہ برے نتائج آنے والے ہیں. بالکل صحیح. آپ کے حساب سے بھی یہ فیصلہ تو کمزور ہے لیکن کوئی آپشن اور نہیں تھا. یہ جو تمام تبدیلیاں کی گئی ہیں وزارتوں میں، اس میں ہمارے تجزیہ کاروں کی ایک ایک وزارت سے متعلق کیا رائے تھی آپ نے جان